Dear students, welcome to this video. Myself Dr. Viren Prasad, and in this video we will study a new topic of integral calculus, that is area under the curve, right? So first, before this, I have some review for you. I will just write down here. If I tell you just draw the line x is equal to 2, so what it's mean? X is equal to 1 and x is equal to 2. So x is equal to 2 means a line, not a point, right? If x is equal to minus 2, what it's mean? This is minus 1 and this is minus 2. So this is x is equal to minus 2. Similarly, if y is equal to 3, it's mean 1, 2 and 3. This is y is equal to 3 line. And y is equal to minus 3 lines, what it's mean? Just draw it down. Minus 1, minus 2 and minus 3. So this is y is equal to minus 3 line, right? Remember these points. These are very helpful in the topic. So now let's start the topic now. Yes, here I have the curve. ये रेड कलर से जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास कर्व है. y is equal to fx and this is my x axis and this is x is equal to a and x is equal to b. अभी मैंने आपको समझाया ये x is equal to 2 समझाया था ना. तो x is equal to a का मतलब क्या है? A line parallel to y axis. x is equal to b, a line parallel to y axis. And here you can see the bounded region, that is by the curve x is equal to a, x is equal to b and x-axis, right? So this is the bounded region. So here we interested to find the area, that is C, D, E, F. So what we did, we consider an elementary strip, right? So let its height is y and its width is dx. So what is the elementary area of this strip? Length into breadth या width. तो कितना हो जाएगा इसका? अगर मैं dA कहूँ, dA इससे yes कहाँ पर लिखूँ मैं? इधर लिख लेता हूँ मैं. dA is equal to y dx. जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रही है आपको, इसका एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, y इनटू dx, राइट? तो होल रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? ऐसी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक होगी. तो वही हमने लिखा, दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, राइट? तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1 का dA के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो एरिया आ जाएगा आपका टोटल एरिया, राइट? एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड y dx. सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस. रिमेंबर दिस, हियर इज द केस व्हेन कर्व इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म. मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म, यानी जब आपको कर्व y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में गिवन होगा. और आपको अगर कर्व ऐसे दिया x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, इसका आप सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और यहाँ पर आप समझ सकते हैं x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू यस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. क्लियर? सो अगर आपके पास x इज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d and x dy. Here you can see now I have the curve x is equal to fy. This is my y is equal to c, this is y is equal to d and this is y axis. So here we can say the area bounded by the curve x is equal to fy, y is equal to c, sorry, y is equal to c, y is equal to d and y axis, and this is my bounded region, right? एरिया कब बोलते हैं आप? जब बाउंड्री हो, बाउंड्री के अंदर जो एरिया रीजन बाउंड होता है उसी को आप एरिया कहते हैं.
राइट। तो अब इसमें ध्यान रखें स्टूडेंट, जब आप स्ट्रिप इसमें कंसीडर करेंगे तो ऐसे तो कंसीडर करेंगे, राइट। सो दिस इज माई एक्स, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ है, इसको मैंने डी वाई कह दिया, राइट। तो इस एलिमेंट, ये मेरी एक्स हो गई, राइट। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का अगर मैं एरिया आपसे पूछूं डी ए, ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो वही मैंने लिखा है। तो एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। ये स्ट्रिप जो होंगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, वाई इज इक्वल टू डी। सो दिस इज माई formula for area. So let clear this one with the help of some examples. So I have the example, find the area bounded by x is equal to 1 and y is equal to 1 and x plus y is equal to 5, right. So first I draw the axis, right, OX, and this is my y axis. This is 1 2 3 4 5, this is 1 2 3 4 5. As you can see, this is the equation of a straight line. इसे आप कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये आपने 10th 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इसका मतलब कि x एक्सिस पे कितना कट करेगा 5, और y एक्सिस पे कितना कट करेगा 5। तो 1 2 3 4 5, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 5। सो जस्ट मीट दीज पॉइंट्स, राइट, यस। सो दिस इज माई x प्लस y इज इक्वल टू 5। Now what is the another thing, yes, x is equal to 1, तो x is equal to 1 ये हो गया, ये मैंने आपको इसलिए सिखाया था पहले। This is my x is equal to 1 and then my y is equal to 1, this is my y is equal to 1। तो एरिया बाउंडेड क्या होगा स्टूडेंट्स, ये this which is a triangle, this point is A, this point is B and this point is C, right. Yes, what is the coordinate of this point? If I ask you what will be the coordinate of this point, so what you will tell me, this is, what is this, this is y is equal to 1, right, and what is the coordinate of this point, right. Similar manner as you can see, this is x is equal to 1, I just want the limit of x। so अगर मैं इस point पे आपको coordinate पूछूं तो कितना होगा स्टूडेंट, 1,1 होगा या नहीं होगा, x कितना है 1 और y भी कितना है 1। तो इस पॉइंट में इनको नाम दे दूं, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए स्टूडेंट, 1,1। और अगर मैं आपसे c पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो ये जो c पॉइंट है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1 का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो आप इंटरसेक्शन को सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट यानी c पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए 4, राइट। नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर मी, व्हाट, हाउ विल फाइंड द एरिया, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर देखिए x कितना है 1 और यहाँ पर x कितना है 4, सो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट आप स्टेप ऐसे तो कंसीडर करेंगे, ऐसे मैं मिटाऊँ इसको तब दिखाता हूँ मैं आपको, यस, ऐसे तो कंसीडर करेंगे इसमें, राइट। ये स्टेप कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इसमें कर्व क्या आपके पास है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट, और x इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज x इज इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, वही मैंने लिखा हुआ, एंड y dx। सो एरिया इज इक्वल टू 1 to 4। अब अंडर स्टूडेंट लिमिट x ही, y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस x dx। सो एरिया इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट सब्स्टिट्यूट द लिमिट, यस, अपर लिमिट को पुट कीजिए, 5 चौको 20 और 4 चौको 16, 20 में से 16 गए 4, राइट, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 5, राइट, और माइनस 1, yes, is it correct, yes, 5 minus 1 is 4, right, 4, oh, what is this, some mistake is there, yes, there is a mistake,
5x minus x square by 2. So now put the upper limit. 5 4s are 20, yes, and 4 का square होगा 16 और 2 8s are 16, so 20 minus 8, I think so, this is 12. You can make calculation yourself also. This is 5, right, and 5 minus 1 by 2, so this is 9 by 2, so 12 minus 9 by 2, so 24 minus 9 by 2, so this is 13. What will be 15? Yes, 15 by 2 unit. So this is the required area. Got it? This is the required area. That is the area of ABC. Got it? So now take another example. You can pause it.